I started my Instagram account back in 2020 जब कोविड हिट हुआ था. For the first couple of years इतना अच्छा नहीं चल रहा था. पहले साल हाँ जी. of doing this, what was your annual income? I'd say पूरे साल की 1 लाख भी नहीं होगी. कई सारे लोग को जॉब अपनी पसंद नहीं है तो वो फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि धंधा बनाने में या फिर फ्रीलांसिंग में अपने क्लाइंट्स लाने के लिए बहुत टाइम लगता है. और अब आप मंथली कितना कमा रहे हो? I'm averaging about 3 lakh rupees. 3 लाख रुपीस. तो गए कहाँ पैसे? आपका प्रोटीन शेक में कितना जाता है? More than 12,000 I'll say. Eggs, fruits, etc. Yogurt ये सब मिला के maximum 5 to 7,000 rupees a month. I've purchased a walking pad recently 2 months ago. I also purchased a stationary bicycle. And I want to purchase a car for myself and for my parents. I'll get married in 2 to 3 years. I want कि अगले 5 से 6 साल में हम अपना एक नया घर लें. आई थिंक आपको एक्सपेंस ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज हमें दिल्ली में जनवरी 2026 आ गया है एंड दोस्तों बहुत सारे लोगों ने फिटनेस रेजोल्यूशंस लिए इंक्लूडिंग मी. और इसीलिए पहला FYF वीडियो हम एक फिटनेस ट्रेनर के साथ कर रहे हैं. ट्रेनर का नाम है ऋषभ वर्मा. इनका आज हम आपको इनकम बताएंगे, इनके एक्सपेंसेस बताएंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंस. ऋषभ, वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस. कैसे हो आप? Thank you so much. I'm doing well. आप अपने बारे में बताइए. So I am 27 years old. I'm a full-time health and fitness consultant with over 6 years of experience in the health and wellness industry. I basically do 3 things through my online fitness coaching. Number 1 being I work with clients on a one-on-one basis, online, completely online, where I help them with their optimizing their nutrition, exercise, supplementation, and blood marker specifically. I also have my own online nutrition course, which is named the Superhuman Program, where I teach other coaches and even doctors. I also have a mentorship program for other coaches where I help them scale their online businesses. So these are the 3 things I primarily do. And have you always been doing a business or did you start working under someone, learn the tricks of the trade and then you started your own thing? Yeah, so I started my Instagram account back in 2020 जब COVID hit हुआ था. That was the time when I finished my graduation. For the first couple of years इतना अच्छा नहीं चल रहा था because I had no clarity. उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ऑनलाइन फिटनेस कुछ चीज होती है. तो आपने कोई जॉब नहीं की? नहीं, आपने सीधा 2020 में आप ग्रेजुएट हुए. 2020 में आपने अपना इंस्टाग्राम पे पेज शुरू कर दिया. I just started posting content related to nutrition, exercise, अपनी वर्कआउट वीडियोस पोस्ट करता था. मैं पूरे दिन क्या खा रहा हूँ वो सब चीजें मैं जर्नल करता था वहाँ पे अकाउंट पे. एंड धीरे धीरे started coaching my friends, my family members to get testimonials. And then धीरे धीरे once I had 5-10 testimonials before afters, तो लोगों ने reach out करना शुरू किया. But for the first 2-3 years things weren't too great. I was barely making 20,000-30,000 a month. That was an average I was doing. पहले साल हाँ जी. of doing this, what was your annual income? पूरे साल की इनकम कितनी होगी 2020 FY में? 2020 में मैंने मार्च में अकाउंट क्रिएट किया था. I'd say पूरे साल की 1 लाख भी नहीं होगी. पूरे साल की 1 लाख से भी कम होगी. ठीक है. अगले फाइनेंशियल ईयर आपकी इनकम कितनी थी? It went to 2.5. तीसरे साल आपकी इनकम कितनी थी? So 2022 it was around, I was averaging 40K a month, so almost 5 lakh. 5 lakhs. ठीक है. The reason why I'm asking this is because 2025-26 में कई सारे लोग को जॉब अपनी पसंद नहीं है तो वो फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि धंधा बनाने में या फिर फ्रीलांसिंग में अपने क्लाइंट्स लाने के लिए बहुत टाइम लगता है. राइट है ना. तो अगर आप अपने जॉब से नाखुश हो then freelancing is not the solution, right? And second thing, if you are planning to become a freelancer, या तो आप अपने मम्मी पापा के साथ रहो, है ना. क्या आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते? हाँ जी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहो. वो आपके सारे, है ना, जो बेयर मिनिमम खर्चे वो निकाल लेंगे ताकि आप ये कर सकते हो. या फिर आपके पास 5 से 6 महीने का अपना खर्चा होना चाहिए. दैट इज द बेयर मिनिमम. वरना होगा ये कि आप पहले दिन से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. आप पहले दिन से किसी को भी क्लाइंट पकड़ लोगे एंड यू विल बी लाइक कि फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर मी, बिजनेस इज नॉट फॉर मी. सो यू हैव टू सेट अप दिस बेस. बिजनेस बनाने में टाइम लगता है. तो 3 साल तो आपको लग गए सिर्फ और सिर्फ बेस बनाने में, है ना. आज के दिन आपने बोला कि आपके 3 बिजनेसेस है, राइट. वो 3 बिजनेसेस में आपका सबसे ज़्यादा टाइम किस बिजनेस में जाता है और आपकी इनकम सबसे ज़्यादा किस में आती है? तो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा जाता है 1-on-1 कोचिंग में.
because I take weekly calls with all of my clients, and that is the business from which I'm earning the most as well. ओके, इससे आप पिछले 6 महीने में ऑन अ मंथली बेसिस कितना कमा लेते हो? I'm averaging about 3 lakh rupees 3 लाख A month रुपीस अ मंथ through फ्रॉम दिस. online लवली. coaching. क्या क्या खर्चे हैं इस बिजनेस में? So subscriptions हैं, so Google business का subscription है मेरा. I use spreadsheets. Secondly, exercise review करने के लिए I use a software, and that's about it as far as the one-on-one business is concerned. एंड कितना लग जाता है मंथली बेसिस पे इसका? 7,000 to 10,000, 7 से 10,000 के बीच. ठीक है, और लवली. इसी बिजनेस में ही सो वन ऑन वन कोचिंग के लिए ही आई ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट. सो द फी आई एम पेइंग माई एडिटर और द डिजाइनर, वो भी इसमें ही काउंट होगा, एंड दैट्स सेपरेट. सो दैट इज अनदर 15,000. अनदर सो 15,000. 25,000 इन टोटल. 25,000 आपका है, तो नेट प्रॉफिट आपका बन रहा है मोर देन 90%, करीब 91-92%, विच इज लवली. ठीक है, जो आपका सेकंड बिजनेस है न्यूट्रिशनल कोर्स, हाँ. उससे आप कितना कमा रहे हो एवरेज 1 to 1.5 L पर मंथ? पर मंथ. जो थर्ड सर्विस है वहाँ पे वन ऑन वन मैं कोचेस को हेल्प करता हूँ उनका बिजनेस स्केल अप करने में, उन्हें बेटर कोचेस बनाने में, एंड दैट इज लिमिटेड टू ओनली 6 people. आई एम ओनली वर्किंग विद 6 people ऑन द वन ऑन वन थिंग. एंड इसमें आप क्या 6 लोगों के साथ एक साथ कोहोर्ट बना के उन्हें सिखाते हो कि वन ऑन वन सिखाते इट्स अ वन ऑन वन थिंग. हो? वन ऑन वन करते हाँ हो. जी. उससे आप कितना कमाए हैं वो पिछले 6 महीने So में? that is only a one-time thing. ओके, So I got 4.8 L. ठीक है. और ये That's not a monthly income Of because course. I got almost 5 lakh rupees at once. तो आपके टोटल इन 3 बिजनेसेस से आप करीब 5 लाख रुपए कमा रहे हो ऑन अ मंथली बेसिस. इज दैट करेक्ट? 4 से 4.5. 4 से 4.5 लाख ऑन अ मंथली बेसिस. हाँ जी. काफी अच्छा है, रेवेन्यू तो काफी अच्छा है. और आपके खर्चे, टोटल खर्चे कितने सारे बिजनेस को मिला के? टोटल खर्चा तीनों बिजनेस का 50,000. हाँ जी. इसके अलावा कोई बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस? इसके अलावा कोई मान लो कोई ट्रैवल करना पड़ता है? ट्रैवल करना पड़ता है, यस. वो सारे एक्सपेंस हैं. क्या वो बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है? यस, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है. ऑलमोस्ट ट्रैवल एवरी मंथ फॉर सम सॉर्ट ऑफ एन इवेंट और समथिंग, और टू जस्ट मीट अ क्लाइंट और मीट क्लाइंट्स दैट वे. तो रफली 10 से 15,000 रुपए एवरी मंथ. तो आपके सारे एक्सपेंसेस ये ट्रैवल को मिला के आपके टोटल मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस 55 to 60,000. हाँ जी. उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, उससे ज्यादा नहीं है. है ना? मतलब आपका नेट मंथली प्रॉफिट इज 3.9 to 3.8 lakhs. Yeah. So, for example, if I'm purchasing courses to enhance my knowledge, upgrading my knowledge, will that count as an expense, business expense? Yes. If it does, then it's roughly 30,000 rupees a month. कोर्सेज का अलग से 30,000. हाँ. तो 3.5 लाख जितना आपका मंथली तीन तक. 3 तक आपका आ I'd रहा है. say. हाँ जी. ठीक है. अब आप बताइए मुझे कि ये 3.5 लाख के प्रॉफिट में से आप हर महीने सैलरी कितना ड्रॉ करते हो? जितना बचता है वो सारा मेरा है. The entire amount of 3 to 3.5 L. That's completely mine. अब उसमें से I then have to pay for the bills. घर के जो bills होते हैं, groceries, miscellaneous expenses. Sometimes I also pay my mother randomly. हमारा खुद का घर है, तो जो भी मेरे कोई loans नहीं है, जो लोन्स हैं वो फादर. ये हो गया आपके पर्सनल एक्सपेंस. या. आपकी कंपनी का नाम क्या है? ये 3 ऋषभ वर्मा फिटनेस. ऋषभ वर्मा फिटनेस. आप जो एक्सपेंस बता रहे हो वो ऋषभ वर्मा के हैं. मैं पूछ रहा हूँ ऋषभ वर्मा फिटनेस से कितनी सैलरी ले रहा है? 3 से 3.5 लाख. अब 3 महीने डाउन द लाइन, इमेजिन समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस इन योर फैमिली एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क फॉर 2 months. व्हाट विल योर रेवेन्यू बी? इट विल कम डाउन. तो उस टाइम पे ऋषभ वर्मा फिटनेस ऋषभ वर्मा को 3 लाख 3.5 लाख की सैलरी कैसे देगा? दैट वोंट हैपन. आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आपकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो आपका नहीं है, वो आपकी कंपनी का है. उसमें से आपको एक सैलरी लेनी चाहिए. बट आज के दिन ऋषभ वर्मा जो प्रोपराइटर है वो सब कुछ ले जा रहा है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर एनी फ्रीलांसर आउट देयर इंक्लूडिंग यू हैव टू ड्रॉ फिक्स सैलरी. आपने बोला कि आपके कोई मंथली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आपके कोई लोन्स नहीं है, तो आपकी फिक्स सैलरी होनी चाहिए 75 से 80 हज़ार रुपए. बाकी सारा का पैसा ऋषभ वर्मा फिटनेस जो कंपनी का अकाउंट है उसमें होना चाहिए. तो हम आपको एक एक्सपेंस ट्रैकर देंगे, बिजनेस एक्सपेंस ट्रैकर एंड पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर. आपको एक काम करना है, आपको पिछले 3 महीनों के अपने पूरे बैंक स्टेटमेंट्स निकालने हैं. बाय द वे, आपके जो बैंक अकाउंट्स है क्या पर्सनल खर्चे और बिजनेस खर्चों के लिए अलग है?
करेंटली एक ही है, एक ही बैंक अकाउंट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऋषभ वर्मा फिटनेस का एक अलग सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए और आपका एक अलग सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो भी ग्रोसरी बिल्स है, आपके जो भी पर्सनल लेजर वाले खर्चे हैं, वो आपके खुद के पर्सनल अकाउंट से ही जाएंगे। पिछले 3 महीने का अपना पूरा बैंक बैलेंस निकालना है, बैंक बैलेंस नहीं, अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। और फिर हमारे ट्रैकर में आपको वो डालना है। उससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में कितने जा रहा है, आपका पर्सनल में कितना जा रहा है, कितने खर्चे नेसेसरी है और कितने खर्चे अवॉइडेबल या फिर विलन कैटेगरीज है। फिर आपको 2 विलन कैटेगरी आइडेंटिफाई करने हैं। विलन कैटेगरी वो होता है जिसमें आपको लगता है कि यार पिछले 3 महीने में बहुत ज्यादा खर्च हो गया और ये अवॉइडेबल भी है। एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट कि जनवरी फरवरी मार्च में आपको इन 2 विलन कैटेगरीज में 5-5 हज़ार ईच कम खर्च करना है। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, फिक्स योर फाइनेंस का आपको अपना एक फिक्स सैलरी लेना है और आपको 2 अलग अलग अकाउंट्स रखने हैं अपने पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स के लिए। अब आप बात करते हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। आप हर महीने करीब 3 से 3.5 लाख आपका बचता है। कहाँ जा रहा है? आपने बोला ये जो घर है वो आपके मम्मी पापा का ही है, तो रेंट या फिर ईएमआई है नहीं। नेक्स्ट एक्सपेंस होता है बड़ा, बाहर खाना, बाहर जाना, रेस्टोरेंट्स में, पब्स में, बोलिंग करने, चिल करने, उसमें आप मंथली कितना खर्च करते हो? हार्डली एनीथिंग। नेक्स्ट है शॉपिंग। आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक गुड, टू प्रेजेंट योरसेल्फ। शॉपिंग कितनी फ्रीक्वेंटली होती है? हाउ मच आर यू स्पेंडिंग ऑन अ मंथली बेसिस? सो इफ वी टॉक अबाउट एवरेजेस देन 10,000 rupees on an average. नेक्स्ट खर्चा मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या कोई मम्मी पापा को कोई हेल्थ इश्यूज है? नहीं, ऐसा मेजर कोई हेल्थ इशू नहीं है। माय फादर इज अ डायबिटिक, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम। मी बीइंग अ फिटनेस कोच, थिंग्स आर थैंकफुली अंडर कंट्रोल। ठीक है। यूटिलिटी बिल्स कौन पे करता है? क्या आप पे करते हो कि पेरेंट्स टेक केयर ऑफ इट? बिल्स का आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज फॉर एवरीवन इन द फैमिली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो सबका मैं पे करता हूँ। एंड इट्स रफली 8 to 10,000 rupees a month. अभी तक तो आपके सारे खर्चे सॉर्टेड है, बट जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें शायद आप ज्यादा खर्च करते होंगे। हेल्दी लिविंग। आपने बोला हाई क्वालिटी फूड खाते हो, है ना? यू आर अ फिटनेस ट्रेनर, तो आप ऑफ कोर्स खुद भी जिम जाते होंगे। क्या क्या खर्चे हैं आपके हेल्दी लिविंग के? सो सबसे पहले माय जिम सब्सक्रिप्शन, I pay 25,000 rupees for the entire year, which comes down to 2,000 to 3,000 rupees a month on an average. Then for supplements, अगले 1 महीने आपका कोई प्रोटीन का खर्चा नहीं होगा, क्योंकि आज के जो स्पॉन्सर है ट्रू बेसिक्स, वो आपके लिए एक प्रोटीन पैक लेके आए, वेलनेस पैक लेके आए। nice. ये लीजिए आपका शेक और ये आपका स्टील स्कूप। ऑनेस्टली मैंने भी पिछले 2-3 साल में अपने हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू किया। व्हेन आई गॉट सीरियस अबाउट माय फिटनेस जर्नी, आई स्टार्टेड टेकिंग दिस ट्रू बेसिक्स का क्लीन वे प्रोटीन। ओके, ये देखिए, ये क्लीन है, लैब टेस्टेड है, एंड दे यूज नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फिलर्स। आई एम गेसिंग दैट्स बैड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड इट डज नॉट mess with your metabolism. This is just pure nutrition that your body actually needs. तो 2026 में दोस्तों, अगर आप अपने फिटनेस गोल्स के बारे में सीरियस हो, आप ये ट्राई कर सकते हो। यूज माई कोड anshoot10 एंड आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये ले ऋषभ, दिस इज फॉर यू। Thank you so much. Thank you. तो सबको ही एक हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, एंड दैट इज द मिशन दैट यू आर डूइंग। दैट इज ऑल्सो द मिशन ऑफ टुडे स्पॉन्सर ट्रू बेसिक्स, बिकॉज वंस यू आर ओवर 35 आपका मसल मास गिर जाएगा। अभी तो क्या, आप यंग हो, आप जवान हो, आप कुछ भी खा लो, आपकी बॉडी कैसी भी दिखे, आप कुछ भी कर सकते हो, बट 35 के बाद आपका मसल मास गिरते जाएगा, जिसके वजह से आपकी जो डेली लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होगी। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप एक फिट लाइफ जियो, आप ज़्यादा प्रोटीन खाओ, आप ज़्यादा जिम करो। अगर आपको अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, ट्रू बेसिक्स का प्रोटीन आप ले सकते हो। यूज माई कोड anshoot10, आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपका प्रोटीन अभी 1 महीने या 3-4 महीने के लिए सॉर्टेड है, तो प्रोटीन शेक का कोई खर्चा नहीं है। वरना आपका प्रोटीन शेक में कितना जाता है? More than 12,000, I'll say. 12,000 रुपीज आपका प्रोटीन में जा रहा है। तो आपका हेल्दी लिविंग में बताया था 5,000 खाने का, 12,000 पूरी फैमिली के प्रोटीन नीड्स, ठीक है, 17,000 सप्लीमेंट्स का 5,000, 22,000 जिम मेंबरशिप 2,000। अंकल आंटी क्या करते हैं? घर पे वॉकिंग करते हैं? वो घर पे करते हैं। फॉर देम आई हैव परचेज्ड अ वॉकिंग पैड रिसेंटली 2 months ago. I also purchased a stationary bicycle for both of them. तो वो मैंने परचेज किया था। Then I have weights at home. तो मेरे पेरेंट्स घर पे वेट से, रेजिस्टेंस बैंड से एक्सरसाइज करते हैं। सो दैट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट।
one time expense. ठीक है, बट ऑन अ मंथली बेसिस हेल्दी लिविंग में 3 लोगों की फैमिली 24,000 रुपए स्पेंड कर रही है, Right. बट 24,000 रुपए लग रहे हैं हेल्दी लिविंग के। तो एक चीज़ है इंडिया में मैंने देखा है कि हेल्दी लिविंग अब एक प्रिविलेज बन गया है। Next is I'd say miscellaneous expenses जो घर पे करना है, कुछ hopefully ना हो, कोई emergency आ गई है, then I have to contribute, ऐसा कुछ करना है। In January I had to pay the premium, medical premium for the entire family. तो वो एक major chunk था जो मुझे pay करना पड़ा, but that's not a monthly expense, it's a one time expense. आप क्या कवर कितना है? मेरा खुद का कवर है 10 लाख रुपीस का। 10 लाख। आपकी मम्मी पापा का कवर कितना है? उनका 15 लाख। 15 लाख ईच? दोनों का मिला के। दोनों का मिला के। So since my father is also a government employee, हाँ. तो उन्हें एक गवर्नमेंट की तरफ से भी इंश्योरेंस है, बट हमने प्राइवेट भी अपने लिए लिया हुआ है। Yes. So for both of them, they have two insurances in a way. ठीक है। एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। अगर हम आपके सारे एक्सपेंसेस देख ले और उस एक्सपेंसेस में 10-15% का बफर भी डाल दे तो करीब 1,10,000 1,20,000 जितना बन रहा है। पर्सनल इज दैट करेक्ट? हाँ जी। मतलब अगर मैं आपके पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस दोनों को ऐड करूं तो 1.75 लाख बनते हैं। हाँ जी। पिछले 6 महीने में आपके पास आपने हर महीने 4.5 लाख ऑन एन एवरेज कमाया, तो आपके हर महीने ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए बच रहे हैं। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा थे। ओके, सो I'd say close to 2.5 L। अगर हम सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स की बात करें, हाँ, इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर ईयर, तो वो 1.75 to 2 लाख आएगा। तो पिछले 6 महीने में कैसे 1.7 से 2.5 गया? व्हाट वाज द डिफरेंस? फॉर एग्जांपल आई बॉट अ मैकबुक फॉर माई सेल्फ, तो वो 80,000 वहाँ पे ऐड ऑन हुआ। घर में कुछ काम करवाना था तो आई कॉन्ट्रीब्यूटेड दैट वे। आई परचेज द वॉकिंग पैड एंड स्टेशनरी बाइसिकल फॉर माई पेरेंट्स, तो वो एक्सपेंस वहाँ पे ऐड हुआ। देन आई पेड द प्रीमियम फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ऑल 3 of us। तीनों का प्रीमियम्स कितना होगा टोटल अमाउंट? टोटल 60,000 जो भी जनवरी में हैड टू पे दैट, एंड ऑल्सो ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस वर ऑन द हायर एंड लास्ट 6 मंथ्स में। गॉट इट। तो पिछले 6 महीने में आपके 70 से 80 हज़ार रुपए ज्यादा स्पेंड हुए, राइट, एज कम्पेयर टू दी अदर मंथ्स। बाकी सब तो ऑल गुड, बट एक मेरा फीडबैक यही है कि आई थिंक आपको एक्सपेंस ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा हैपेजार्ड है। पिछले 6 महीने की ही आपने 12-15 लाख रुपए सेव कर लिए होंगे। हाँ जी। और आपकी टोटल सेविंग्स कितनी है? 20 लाख के आसपास। 20 लाख। बट आप तो आपके जो खर्चे और आपका जो रेवेन्यू है उसमें अगर डिफरेंस देखे तो ये अमाउंट तो आपने सिर्फ 1 साल में ही बचा लिए होंगे, है ना? 20 लाख से ज़्यादा तो आप एक ही साल में बचा लिए हो। तो गए कहाँ पैसे? उससे पहले करता था बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करता था, एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो ऑन द लोअर एंड। तो आप कैसे इन्वेस्ट करते हो? 1-2 लाख की मैंने लास्ट ईयर एफडी कराई थी। ठीक है। देन आई हैव क्लोज टू 3.5 लाख के स्टॉक्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है। 3.54 तक के म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे इन्वेस्ट किया, एंड 20,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइंस। 20,000 के बिटकॉइंस की वैल्यू है। ठीक है। टोटल मिला के ये सब इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो क्लोज टू 9.5 लाख। ठीक है। और बाकी जो 15-16 लाख है वो कहाँ है? दैट्स इन माय बैंक अकाउंट। ठीक है, विच इज़ गुड। आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग इट्स गुड, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के लिए 15-16 लाख रुपए बचा के रखे हैं कि कभी भी अगर एक्सपैंड करना हो तो एक कंपनी के पास है। तो आपका जो बिजनेस अकाउंट जो आप बनाओगे, सेविंग्स अकाउंट, फर्स्ट स्टेप, ये जो 16 लाख बचे उसमें से 10 लाख रुपए आपको अपने बिजनेस की एक एफडी बनानी है। 2 लाख रुपए आप उसके बैंक अकाउंट में रख लो रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है? और बाकी का जो 3-4 लाख रुपए दैट यू कैन इन्वेस्ट आइदर फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स और योर लॉन्ग टर्म गोल्स। अब जो आपने कहा कि आपके पास म्यूचुअल फंड में 3.5 लाख है, स्टॉक्स में 3.5 लाख है, हाउ डू यू इन्वेस्ट? डू यू इन्वेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस और डू यू इन्वेस्ट जब एक्स्ट्रा बच जाता है तब? सो म्यूचुअल फंड्स में आई इन्वेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस, SIP मंथली बेसिस पर। सो 20 से 25 हज़ार रुपये एवरी मंथ इन म्यूचुअल फंड्स। बिटकॉइन मैंने एक ही बार परचेज किया था, सो इट्स नॉट एवरी मंथ। FD एक बार कराई थी 2 लाख की। स्टॉक्स का अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। सो माई फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल एडवाइसर, तो जब भी मुझे एडवाइस करता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और परचेज सम स्टॉक्स, आई डू दैट। ठीक है। और आपकी FD आपने बोला 2 लाख की? 2 लाख की है। 2 लाख की, राइट? आपके मंथली एक्सपेंसेस करीब 1,10,000 के है। आपका पर्सनल ऋषभ वर्मा का जो इमरजेंसी फंड है वो करीब 3.5 लाख का होना चाहिए। सो 2 लाख से उस FD को 3.5 लाख बनाओ। ठीक है। और क्या हेल्प कर सकता हो? एवरीथिंग लुक्स गुड। Yeah, so I also have 3 goals. Okay. One short-term goal Okay. of purchasing a car. So we don't have a car.
ठीक and है। I want to purchase a car for myself and for my parents. ठीक है। The second goal is to I'll get married in 2 to 3 years, and I want to make sure that I am taking care of all the expenses. I don't want my parents to Lovely. do that. That's the second goal. And then the third goal is to purchase a house for my parents and for myself within the next 5 to 6 years. कोई बहुत जल्दी नहीं है. This is our house. ये हमारा खुद का घर है. My father he pays the EMI पे करते हैं वो. But I want कि अगले 5 से 6 साल में हम अपना एक नया घर लें. So these are my 3 short and long ठीक है, term. लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहला गोल है आपको गाड़ी खरीदनी है 15 लाख रुपए की अगले 12 से 18 महीने में। हाँ जी. उसके लिए आपको सिंपल चीज करनी है, आपको डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए अलग से रखने हैं, बाकी 12 लाख रुपए का आप कार लोन ले लो 4 से 5 साल के लिए। Okay. 12 लाख का लोन फॉर 5 इयर्स, अगर मैं नॉर्मल मैथ करूँ वो करीब 25,000 रुपए की आपकी Monthly EMI. मंथली EMI बनेगी। उसके अलावा गाड़ी को मेंटेन करने का भी कॉस्ट आएगा, फ्यूल का कॉस्ट आएगा, क्लीनिंग का कॉस्ट आएगा, राइट, सब कुछ कॉस्ट आएगा। तो हमारा एक कार अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर है, Okay. वो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो। उस कैलकुलेटर के हिसाब से जो भी कार आपको खरीदनी है उस कार का टोटल ओनरशिप कॉस्ट शुड नॉट क्रॉस 20% ऑफ योर टेक होम इनकम, Okay. टोटल कॉस्ट। तो अगर आपकी गाड़ी 12 लाख रुपए की है, 15 लाख की गाड़ी आपने ली है, 25,000 EMI के बाद आपके और 10,000 जितने फ्यूल और बाकी खर्चे में जाएंगे, 35,000। फॉर समवन टू ओन अ कार वर्थ 15 lakhs, according to me their income should be anywhere between 1.5 to 2 lakhs, which in today's time आई थिंक आपकी 1.5 लाख रुपए इनकम आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से सैलरी लो तो आप 1.5 लाख की सैलरी ले सकते हो। तो उस केस में यू कैन अफोर्ड द कार इवन टुडे। आपको बस 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जुटाना है। सेकेंड गोल इज यू वांट टू गेट मैरिड। तो अब आप ये बताओ कि शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक होता है ज्वेलरी, एक होता है आपका उन 2 से 3 दिन का इवेंट्स वगैरह, और तीसरा है आपका आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली वालों का कपड़े वपड़े। आपका क्या ज्वेलरी सॉर्टेड है? मम्मी पापा ने 25% yes. My sister got married last year. तो जो 75% मैं हटा रहा हूँ वो वहाँ पे चला गया था। Not चला गया था is the right word. Yeah. तो 20-25% for the jewelry part is sorted. ठीक है, और बाकी 75% आपको उधर करना है। उसका ही मेजर आई थिंक 5 से 7 लाख उसमें ही चले जाएंगे, कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ गोल्ड टुडे। लाइक 1,40,000 पर 10 ग्राम्स है, तो 5 लाख 7 लाख भी मैं कम बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हो गए आपके इवेंट्स। वो इवेंट्स अब आप पे कि आप कितने लोगों को बुलाओगे। व्हाट डू यू हैव इन माइंड? So if I talk about the entire number or the entire expense, I don't want it to be more than 25 lakh. 25 lakhs including your jewelry. Yeah, including everything. तो 25 lakhs is the goal। कितने साल में गोल अचीव, कितने साल में शादी करनी है मतलब? 2.5-3 years. अब ये एक शॉर्ट टर्म गोल है अगेन। लाइक 3 साल के गोल में आइडियली व्हाट वी रेकमेंड इज 85-15। 85 in debt instruments, 15 to 20% in large cap equities. अगर ऐसा मिक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न करीब 8 या 9% आएगा। आपके इस गोल को अचीव करने के लिए हमने गोल कैलकुलेटर में नंबर्स डाले। अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं देखे कि 25 के 25 लाख ही चाहिए आपको 3 साल में, ठीक है, तो फिर आपको हर महीने 61,000 रुपए इन्वेस्ट करना है RD और किसी भी निफ्टी 100 में 20%, 80% इन RD, 20% इन निफ्टी 100 fund. Okay. Do you think it is possible? Absolutely. Considering I am a freelancer and I'm going to scale up more. So if I'm averaging 4,000 currently, 4 lakh rupees a month currently, I'm pretty sure I'll be averaging around 6 to 7 lakh by the end of 2026. Done. Anything else? Third major expense, house. And it's a long-term goal. I want to purchase a house. I currently don't have a fixed number, but क्योंकि मैं आपकी स्टोरीज या पोस्ट रील्स वगैरह देखता हूँ, a couple of days back आपने मेंशन किया था कि अगर घर खरीदना है तो एनुअल इनकम का 5x अमाउंट से ज़्यादा ना हो। हाँ जी। सो इफ आई एम डूइंग लेट्स से 40 LPA एक साल 2 करोड़ में, तो से 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज द अमाउंट अभी करेंटली द गोल। एट द मोमेंट यू कैन नॉट अफोर्ड इट। हाँ जी, क्योंकि आपकी सैलरी
Right. जैसे मैंने बोला अभी आपकी रेवेन्यू होगा 4 लाख रुपए पर मंथ, Right, but बट आपकी salary नहीं सैलरी 48 LPA नहीं है, राइट है ना? तो आपकी सैलरी अगर हम 1.5 लाख के हिसाब से चले तो 18 लाख आपकी इनकम है। आप 90 लाख से ज्यादा का घर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। राइट मैं आपको जानता हूँ, आप 90 लाख का घर नहीं खरीदोगे। आप खरीदोगे तो अच्छा ही घर खरीदोगे, है ना? तो आप वेट करो, अभी आप EMI मत पालो। हाँ अभी आप एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपकी कंपनी को आपका पूरा टाइम और अटेंशन चाहिए। राइट उसमें अगर आपको एक बड़ा सा लोन ले लोगे, आपका बहुत ज्यादा बिजनेस डिसीजंस ना उस EMI के हिसाब से होगा। राइट लेना है घर, आप वही करो। बट 5-6 साल बाद अभी कोई जल्दी नहीं हाँ, है। तो आप तब तक कंपनी ग्रो करो, बिजनेस ग्रो करो, बिजनेस में पैसे रखो, अपनी SIPs कंटिन्यू करो, है ना? क्योंकि उसके पहले आपको 25 लाख अपनी शादी में भी डालना है, गाड़ी के लिए 15 लाख चाहिए। तभी एक गोल प्रायोरिटाइज करना ही नहीं चाहिए। इसके बारे में बस इसके लिए थोड़ा थोड़ा सेव करते रहो, डोंट थिंक अबाउट इट। परफेक्ट, अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। much. आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। आई होप आप ऐसे ही मेहनत करते जाओ, ग्रो करते जाओ, और आज जो बात हमने डिस्कस की है उसे इम्प्लीमेंट करके एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन और प्रॉस्परस लाइफ जियो। Absolutely. आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाओ, है ना? 94% ऑफ द पीपल वॉचिंग द वीडियोज इन December 2025 वो वीडियो देखते हैं, मजे ले लेते हैं सारे, बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। योर लव एंड सपोर्ट कीप्स अस मोटिवेटेड। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन। बहुत ज्यादा आपके लिए तो एक छोटा सा बटन है, हमारा पूरा दिन बन जाता है उससे। स्पेशल थैंक्स टू ट्रू बेसिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।